We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے کچھ رنگ لا رہی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تقریباً 2 ہفتوں سے جاری خطرناک جنگ اس وقت عارضی طور پر تھمی ہوئی ہے. جمعے سے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی نیا براہ راست حملہ نہیں ہوا، جبکہ تہران تصدیق کر رہا ہے کہ ثالث ممالک کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. تاہم کل سعودی عربیہ، جارڈن اور عراق نے ایرانین ڈرون حملوں کی اطلاعات دی ہیں، جن کے باعث جنگ کی بنیاد اب بھی بدستور قائم نظر آتی ہے، اور یہ خدشہ بھی برقرار ہے کہ جنگ کسی بھی لمحے دوبارہ چھڑ سکتی ہے. اسی دوران اسٹریٹ آف ہورموز پر بھی اہم سفارتی پیش رفت ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہورموز کے حوالے سے سعودی عرب اور عمان کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے ہیں. رائٹرز کے مطابق عمان نے تجویز دی ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز کا انتظام ایران کے بجائے خطے کے ممالک مشترکہ علاقائی نظام کے تحت چلائیں. اس عارضی وقفے یا اس بریک کے دوران پاکستان اور قطر کی مسلسل کوششوں کا سب سے بڑا کردار ہے، یہ مغربی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. خاص طور پہ پاکستان کا جو اس جنگ کے آغاز سے اب تک یو ایس اور ایران کے درمیان کئی مرتبہ سیز فائر کروا چکا ہے اور اب بھی مستقل امن کے لیے سرگرم ہے، ہمت نہیں ہار رہا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور دوحہ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک مشترکہ ثالثی تجاویز پر اپنے رد عمل دیتے ہیں. رپورٹس کے مطابق اسی ہفتے پاکستان اور قطر نے مل کر ایک مشترکہ ڈی ایسکلیشن فارمولہ پیش کیا، جس میں امریکہ اور ایران پر زور دیا گیا کہ مستقل امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے پہلے سٹیج میں دونوں 9 جولائی سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلے جائیں. ایران نے بھی تصدیق کی ہے کہ میڈیشن ہو رہی ہے اور میڈیٹرز کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کی تجاویز موصول ہوئی ہیں، جن کا وہ جائزہ لے رہا ہے. تہران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ڈپلومیسی کے راستے پر قائم ہے. اسی دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی مذاکرات کی بات کرتے نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت ایران کے ساتھ اچھی بات چیت کر رہے ہیں، جن سے نتائج کی امید ہے. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. We're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot. Last night, the night before, 2 nights, don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. تاہم ایران کی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. ایران کہتا ہے کہ ہمارے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے. ایران یہ نہیں کہتا کہ ثالثوں کے ذریعے مذاکرات نہیں ہو رہے. نہیں، میڈیا میں گردش کرنے والی قیاس آرائیوں پر زیادہ توجہ نہ دیں. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس وقت امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. البتہ ہمارے جو مذاکرات جاری ہیں اور جنہیں مختلف انداز میں تعبیر کیا جا سکتا ہے وہ عمان کے ساتھ ہیں. ان مذاکرات کا مقصد آبنائے ہرمز سے متعلق ضروری انتظامات اور طریقہ کار طے کرنا ہے. ادھر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جمعے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے مسلسل 2 ہفتوں کی بامبنگ روکنے کا فیصلہ دراصل اندرونی ملٹری اور سیاسی خدشات کا نتیجہ ہے، جس سے امریکہ اس وقت دوچار ہے. جمعے کو وائٹ ہاؤس کی میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے جنگ کے مزید پھیلاؤ کے خطرات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا. We've learned new details about a consequential meeting that took place at the White House on Friday when discussions were being had about potentially escalating the conflict with Iran. All of the president's top advisors were in the room, we're told, and there were some hard truths laid out for the president by both Vice President J.D. Vance and Chairman of the Joint Chiefs Dan Kane, both of them warning about potential concerns related to the options for escalating this conflict. And Kane, in particular, pointed to these warnings
warnings about the U.S.'s diminishing stockpile of key munitions, saying that if the U.S. continues to use them at the clip that they've been using them so far in this conflict, they may not have enough for the next war. इसी दौरान एग्जॉस्ट ने भी एक अहम इंकशाफ किया है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मिडल ईस्ट में अमरीकी फ़ौज के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अतराफ बॉम्बिंग रोकने की सिफारिश की है। उनका कहना था कि अमरीका ने फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए जो टारगेट्स हासिल करने थे वो अब कर लिए हैं, मज़ीद हमले सिर्फ वक्त का ज़िया होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवाइजर्स के इन्हीं मशवरों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर एरियल बॉम्बिंग रोकने का फैसला किया था। ताहम सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की काबीना ही जंग के मजीद फैलने पर कंसर्न्स का इजहार नहीं कर रही, बल्कि अमरीकी अवाम भी तेज़ी से और बहुत ही तेज़ी से इस जंग से मजीद और मजीद बदतिल होते जा रहे हैं। 65% of Americans, we're talking 2 in 3, say no, no, no. The American people are completely disagreeing with him on this issue of the Iran war. The clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls. It's making a lot of Republicans nervous. It's already, as we know, unpopular. Republicans cannot let this become an endless distraction, especially if they want to win in November. A large majority of Americans believe Donald Trump's war is going badly. 63% of Americans say that Donald Trump's war is going badly. 30% say it's going very badly. मजमूई तौर पे देखा जाए तो यूएस और ईरान के दरमियान जारी ये ब्रेक जो एक आर्जी ब्रेक है, महज इत्तफाक नहीं, बल्कि वाशिंगटन पर बढ़ते हुए अंदरूनी पॉलिटिकल, मिलिट्री और पब्लिक प्रेशर का नतीजा है। पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका सिफारती फार्मूला दोनों फरीकैन को यानी अमरीका और ईरान को एक ऐसा बाइज्जत रास्ता फराहम करता है जिससे पूरा रीजन मज़ीद तबाही से बचाया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज मोहतरम मसूद खान साहब। एम्बेसडर मसूद खान पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में, और पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। बाकर सज्जाद साहब पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स के हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि जंग थमती नज़र आई है, थमी है पिछले चंद दिनों में, लेकिन उसकी बुनियाद अपनी जगह से ख़त्म नहीं हुई है, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि जो शिद्दत थी वो कुछ तहलील हुई है या तहलील होती जा रही है। आप इस बात से एग्री करेंगे खान साहब? एक तो कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया एक मरतबा फिर। मैं सिर्फ इस सिलसिले में ये कहूँगा कि इसे एक मैं वक्फा कहूँगा और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो इस वक्त सालसी की कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब हों। ये भी याद रखिए कि नेतन्याहू इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं और उन्होंने सदर ट्रंप को कुछ मशवरे देने हैं, उसमें ख़ास तौर से वो ये भी मशवरा दे रहे हैं कि आप पिक एक्स माउंटेन के ऊपर हमला करें और जो भी जौहरी तनसीबात हैं उनको तबाह बर्बाद किया जाए। मतलब पिछले साल उन्होंने तबाह की थी नतन्स, इस्फहान और फर्दो, और उसके बाद जो है अर्दकान में जो इनका येलो केक एक प्लांट है, और उसके बाद जो हैवी वाटर का वो भी हैवी वाटर का इराक़ में एक जगह, तो वहाँ उनके हमले हुए थे। अभी जो अमेरिका ने पिछले दिनों हमले किए हैं उसमें ख़ास तौर से जौहरी प्लांट्स जो है उनके ऊपर हमले किए गए थे। उसमें ख़ास तौर से बुशर जो विच इज़ अ सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जो जैसे कि आप ख़ुद अपने तबसरे में बता रहे थे कि जो दूसरे उनके मकासद थे उन्होंने बड़ी हद तक हासिल कर रहे हैं। आप कोट कर रहे थे सेंटकॉम के कमांडर को ब्रैड कूपर को कि उन्होंने जो साहिली इलाका है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उन्होंने बड़ी हद तक डिग्रेड कर दिया है इनकी कैपेबिलिटी। इसमें कुछ ख़तरात मौजूद हैं। इस मरतबा जो है जंग को बहुत वसी कर दिया गया था। एक तरफ ये जंग जो है एक तरफ ये चली गई बाबल बंदब की तरफ, उसके रेड सी की तरफ, और दूसरी तरफ है ये जॉर्डन तक पहुंची, और बहुत से जो हमले किए गए वो या इसराइल के एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए गए या यूनाइटेड किंगडम के किए गए। एक हमला जो है कैस्पियन सी में भी हुआ ईरान के एक वेसल के ऊपर। तो इस तरीके से ये आप यूँ कहिएगा कि ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल जंग शुरू हो गई है, और ये पहले भी थी लेकिन अब इसने ये नक्शा इख्तियार किया है। जो आपने तबसरा किया था वो मेरा ख्याल है कि सबसे उम्मीद अफजा चीज़ है, और वो ये है कि जो ओमान और ईरान का एक फार्मूला सामने आ रहा है जिसमें 4 नुकात हैं। एक नुक्ता ये है कि जॉइंट गवर्नेंस हो, दूसरा ये है मैं आपने हरमूज़ की बात कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि
टोल उस तरीके से लगाया जाए, या उसे टोल ना कहें, वो जो है सर्विस चार्ज कह दें जी, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, या सर्विस चार्ज माहौल की प्रोटेक्शन और जहाज़ रानी की हिफाजत के लिए, और वो भी वॉलंटरी हो। उसमें ख़ास तौर से जैसे मलाका स्ट्रेट में है। और तीसरा उसमें यह है कि ईरान जो है माइंस जो भी है, माइन क्लियरेंस में जो है अपना हाथ बटाए। और 3 उन्होंने राहदारियाँ बताई हैं, उसमें से एक दरमियानी राहदारी है जो इंटरनेशनल है, एक जो है शुमाल में जो ईरान की वज़ा करदा राहदारी है जो वहाँ से, और एक जो है ओमान की होगी। ये मेरा ख़्याल है कि तमाम लिटरल स्टेट्स को काबिल क़बूल होगी। ईरान का मुतालबा ये है कि अगर ये इस पर इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तो अमेरिका जो अब इसका जो ब्लॉकेड है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करे। तो मैं समझता हूँ कि एक रास्ता तो निकला है कि किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म किया जाए। एक चीज़ जिसका मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ जी फरमाइए, वो ये है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। 2 नुकसानात हुए हैं उसकी जो है, बल्कि 3 नुकसानात कहूँगा। पहला नुकसान ये है कि उनकी जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लो कॉस्ट ड्रोन्स ने और मिसाइल्स ने उसको भारी नुकसान पहुँचाया है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उनकी शोहरत को बट्टा लगा और उनकी मईशत तबाह हुई, और फिर जो है उनके हलीफ थे उनसे पीछे हट गए। और तीसरा ये है कि उनको अपनी आबादी, जैसा कि आप फरमा रहे थे, वो इस जंग के ख़िलाफ़ हो गई, यानी मतलब उनके अंदरूनी सियासी ख़तरात भी बढ़ गए। इन हालात में मैं दूसरी तरफ ये भी इशारा करूंगा कि ईरान के मसाइल भी बहुत बढ़ गए हैं उनकी। जी खान साहब, इस पे हम आपसे मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ बाक़र सज्जाद साहब भी हैं, मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी। बाक़र साहब ये फरमाइएगा कि जो हमें इस वक्त जो थमी हुई जंग नज़र आ रही है और उसके उस हवाले से सुरंग के आखिर में अगर कोई रोशनी नज़र आ रही है तो वो 2 तरफ़ा है। एक जानिब तो ओमान की कोशिश कि वो सऊदी अरब के साथ मिल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से एक नया निज़ाम तश्कील दे सके जो पूरी दुनिया को काबिल कबूल हो। दूसरी जानिब इत्तलात के मुताबिक गैर एलानिया जो है वो जो एक मीडिएशन है वो मुसलसल जारी है और पाकिस्तान और कतर की जानिब से, जिसकी बुनियाद की पे इस वक्त का जो जंग थमी हुई है, जिसको हम सीज़ फायर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि गैर ऐलान शुदा जो इस वक्त कैफियत है उस पे भी एक पैरेलल काम हो रहा है, जिसका कि ट्रंप ने भी एतराफ़ किया है। हमें इस्लामाबाद में कुछ खबरें आ रही हैं इस हवाले से जो ये उम्मीद बेयर करती हों कि ये जंग जो है इसमें कुछ अब आगे चल के कुछ बेहतरी नज़र आए। जी कामरान साहब, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं इसलिए इसको सारी सिचुएशन को ज़रा थोड़ा सा बाइफरकेट करूँगा ताकि नाज़रीन समझ सकें। एक तो है मेडिएशन, मीडिएटर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, कतर भी कर रहा है, ओमान भी कर रहा है, वो पैगामात की सिलसिला चल रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि एक्टिव US ईरान नेगोशिएशंस इस वक्त नहीं हो रही, ये भी एक हकीकत है। और जो कुछ हमारे सामने है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मसूद खान साहब ने भी जिक्र किया, वो या तो बायलैटरल एंगेजमेंट है ईरान की ओमान के साथ, या फिर रीजनल कुछ कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं। कतर भी एंगेज कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी एंगेज कर रहा है। आपने कल ही देखा होगा अरागची साहब की ओमान की वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत हुई। तो बातचीत वो सारी की सारी सेंटर्ड है हॉर्मुज़ की गवर्नेंस पे। और जैसे कि ये फार्मूला अभी आया है कि हम उसको जो है ना जॉइंटली जो गल्फ स्टेट्स हैं उसको मैनेज करें। और ये जो बातचीत है, अगर आप देखें कि ये जो लेटेस्ट फेज़ ऑफ एस्केलेशन आया है, इससे पहले भी ये हो रही थी। इस 6-7 जुलाई को मेरे ख्याल में या 5 जुलाई को कतर, ओमान और ईरान की मुलाकात हो रही थी, इस एस्केलेशन से पहले हुई थी बल्कि। और ये उनकी जो MOU इस्लामाबाद MOU के तहत हो रही थी मीटिंग्स, और ये क्लॉज 5 में लिखा था कि ओमान और ईरान मिल के तय करेंगे। तो लिहाजा ये वो प्रोसेस है जो अब कंटिन्यू कर रहा है। और जो अब ट्रंप साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस बायलैटरल एंगेजमेंट को, रीजनल एंगेजमेंट को अपनी डोमेस्टिक मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये हॉर्मुज़ के ऊपर इम्पास ख़त्म होता है तो यकीनन फिर आगे की तरफ ये मसला बढ़ेगा कि जो बाकी इश्यूज़ है, न्यूक्लियर है या उनकी रीजनल पोस्चर है, उसके ऊपर बातचीत होगी, तो अमेरिका और ईरान की एंगेजमेंट शुरू होगी। तो इस वक्त जो एक सिल्वर लाइनिंग हमें नज़र आ रही है वो एक के प्रपोजल टेबल पे आ गई है।
اب دیکھیں ایران اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس میں دو کمپلیکسٹیز ہیں. ایک یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے کہ مکمل اس وقت جو ہے اپنا وہ اس کی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایک ڈومیننس چاہیے, ہم اس کے اوپر ٹول لگائیں گے, ہم کنٹرول کریں گے, اور وہ اپنے ملٹری تھریٹس جو اس کو ہیں ان کو بھی سائٹ کرتا ہے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ ایران کی نظر امریکہ کے پولیٹیکل سکیجول کے اوپر ہے, اور جتنا یہ پروسیس ڈیلے ہوتا ہے یہ ٹرمپ کے لیے کاسٹ بڑھتی جائے گی اور اس کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی, اور وہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ جو پلہ اس میں. جی بجا فرمایا آپ نے کہ یہ کیلنڈر بڑا امپورٹنٹ ہے. ایمبیسڈر صاحب کیلنڈر بڑا امپورٹنٹ ہے, مگر اس دوران ایک بہت ہی رسکی ایسی چیز کی ہے جو ابھی آج ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس میں کہ نیتن یاہو, پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ یو ایس پہنچ گئے. جنگ سب سے شروع ہے, پہلی بار ان کا یہ دورہ ہے, معاف کیجیے گا, امریکہ کا, اور وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں, اور اس وقت پہنچے ہیں جب کہ جنگ انتہائی غیر مقبول ہے, اور اس مینڈیٹ کے ساتھ پہنچے, اس اعلان کے ساتھ پہنچے ہیں کہ وہ جنگ کو بڑھانے کی بات کریں گے. دوسری جانب یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ٹرمپ بھی انتہائی غیر مقبول ہو رہے ہیں, اس کی وجہ ایران کی جنگ ہے, اور امریکہ میں یہ تاثر جو ہے اتنا وسیع ہے کہ یہ اب نیتن یاہو نے, اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں جھونک دیا جس کی وہ بڑی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے. ریپبلکن پارٹی سیاسی قیمت بھی ادا کر رہی ہے اور امریکہ اپنی ساکھ کی قیمت بھی ادا کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ببانگ دہل وائٹ ہاؤس میں بلانا نیتن یاہو کو اور اس کو ریسیو کرنا اور اس کو گریٹ کرنا, جبکہ وائس پریزیڈنٹ سنگین ترین الزام لگا چکے ہیں کہ وہ انڈرمائن کر رہے ہیں, اسرائیل اور نیتن یاہو امریکہ کی سیاست کو اور امریکہ کے نظام کو انڈرمائن کر رہے ہیں, جنگ کو روکنا نہیں دے رہے, جا رہے چاہ رہے. یہ آپ طویل عرصے وہاں ہمارے سفیر رہے ہیں کہ یہ کیا نظام ہے جو کہ اوور پاور کر دیتا ہے یہ اسرائیل کے انفلوئنس کو اور اس طاقت کو, یا یہ کچھ اور ہے؟ آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے, بالکل درست ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اسرائیل کے یرغمالی ہیں اور اسرائیلی لابی کے یرغمالی ہیں. یہی امریکہ کا رواج ہے, یہی وہاں کا سیاسی دستور ہے, اور وہ کانگریس ہو, ایڈمنسٹریشن ہو, بالخصوص ان کے صدر ہوں, وہ اسرائیل کی مدد کے پابند ہوتے ہیں. اور وہی ابھی جو ان کا جو نیتن یاہو کے خلاف آئی سی سی کا وارنٹ ہے, لیکن اسے جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے یا ہمارے درخور اعتنا نہیں سمجھیں گے اسے, کیونکہ امریکہ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے ہوئے. لیکن وہاں جو شہروں میں اور اس کے بعد قصبوں میں, پھر جو چوکوں اور چوراہوں میں یہ ایک قسم کا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار ضرور ہونا چاہیے اور ان کو آئی سی سی کے حوالے کرنا چاہیے. ابھی وہ گئے ہیں تو وہاں بہت وسیع پیمانے پہ مظاہرے ہوئے ہیں, اور نیو یارک میں بھی تیاری ہو رہی ہے. تو میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل درست کہا, اور ایک یہ ہے کہ ایک اس وجہ سے مجبور ہیں کہ کیونکہ وہاں ورنہ جو صدر اسرائیل کی بات نہ مانے یا اسرائیلی لابی کی نہ بات مانے, اس کا سیاسی کریئر ختم ہو جاتا ہے. یعنی بے شک وہ صدر رہے لیکن اس کا سیاسی مگر خان صاحب ابھی تو ماننے پہ سیاسی کیریئر ختم ہوا ہے نا, کہ جو جنگ انہوں نے کری وہ ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کے اکسانے پہ کی, تو اب ایک عام بات ہے اس نے ان کا غرق کر دیا سیاسی کیریئر, اور ان کے تمام جو ریپبلکن پارٹی کا ہے یہ تو اصل تو اس کا اثر بالکل الٹا ہوا ہے. یعنی اسرائیل کے یہ مقاصد نہیں ہوتے کہ وہ کسی امریکی صدر کو کامیاب کریں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کی غیر مشروط حمایت حاصل ہو. اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اس جنگ کے سلسلے میں, لیکن آپ نے درست کہا کہ وہ اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں بدنام ہو گئے اور تنہا ہو گئے. مطلب میگا کنسٹیٹوئنسی تھی, اس کے بعد ڈیموکریٹس ویسے ہی جو ہے پر تول رہے ہیں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشنز میں انتخابات جیتیں گے, اور یہ ہے کہ وہاں اس کی صدر کی جان کو خطرہ ہو جاتا اگر وہ اسرائیل سے اس طریقے سے کھلم کھلا اختلاف کرے. اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ جے ڈی وینس نے کیا ہے, اور جے ڈی وینس کے خلاف جو ہے اسرائیلی اخبارات بہت تفصیل سے لکھ رہے ہیں ان کے مخالفت میں, اور ان کے بارے میں وہ اگر کوئی پریزیڈنشل ہوپ فل تھے یا کینڈیڈیٹ تھے آنے والے انتخابات میں تو ان کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایک چیز اگر آپ اجازت دیں تو میں ایران کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو اس وقت جو ایک ڈیل میکر ہے, یعنی جو ایک بریک تھرو آ رہا ہے یا ہمیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں,
तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो है सर बहरी ब्लॉकेट जो है उसको उठाने के ऊपर बात हल हो जाएगी, या जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत ईरान को जो छूट दी गई थी कि आप तेल बेच सकते हैं बैनुल अक़वामी मंडियों में, और दूसरा ये है कि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई माशी पाबंदियाँ नहीं लगेंगी, जो कि लगाई उनकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कि वो शर्त लगाएंगे कि आप इन्हें वापस ले लें, तो इससे जो है बात आगे बढ़ सकती है। दूसरा ये है कि रिपोर्ट हो रहा है वहाँ से कि वहाँ जो मुज़ाकरातकार हैं वो तो इस हक़ में हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, ये ईरानी मुज़ाकरातकार हैं, लेकिन जो वहाँ जो अल्ट्रा हार्ड लाइनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इनके साथ कोई मामला करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इनके ऊपर एतबार नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जंगी थकन है वो दोनों जगहों पे मौजूद है, और तबाही व बर्बादी भी बहुत हुई है, और खलीजी रियासतों का पूरे का पूरा मुस्तकबिल तबाह हो गया है। उनके बारे में जो वो उनको खुशहाली और सलामती की का गहवारा समझा जाता था, वो सारे का सारा तासुर जो है भाग की तरह उड़ गया है, और उन्हें इसे बहाल करने में जी सर जी फरमाइए। बाखर सज्जाद साहब ये फरमाइएगा कि ये कितना बड़ा पहलू जिसका एम्बेसडर मसूद खान साहब ने जिक्र किया और ज़ाहिर है कि सारी दुनिया में मुश्तहिर हुआ है, और वो कि ईरान की जो लीडरशिप है वो तकसीम है। इसमें कोई अब डाउट नहीं है कि जब प्रेसिडेंट की स्पीच सेंसर कर दे स्टेट टेलीविज़न, और फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच को कर दे स्टेट टेलीविज़न, और स्पीकर पार्लियामेंट की स्पीच को भी कर दे, तो इसका मतलब ये कि कोई और क़ुव्वतें ऐसी हैं जो कि पासदारान और ये दूसरी जो हार्ड लाइनर्स हैं कि वो प्रिवेल करती हैं इस पूरे निज़ाम को, और इसकी दुनिया को पता चल गया है। तो ईरान के अपने इमेज के लिए और फिर ईरान के अंदरूनी मसाइल के हवाले से ये कितनी अहम बात है, और क्या इस बात की अब ज़रूरत नहीं है कि जल्द अज जल्द इस मसले पर काबू पाया जाए, क्योंकि एक तो अंदरूनी मसाइल और फिर मईशत की तबाही और फिर इस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और ये 5 महीने से जारी जंग, ये आफ्टर ऑल इसको पैक करना खुद ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है। जी बिल्कुल कामरान साहब, ईरान के लोग इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि ये हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो और नॉर्मलसी की तरफ वापस जाया जाए। और जहाँ तक जो डिफरेंसेस की बात की जाती है, ये यकीनन एक राय है कि वहाँ पर एक हार्ड लाइन फैक्शन है जो अपोज है इन पीस टॉक से, और दूसरा जो गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड रिलेटिवली सॉफ्टर है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक एक्ट करता है। जहाँ पर अमेरिका ने हमले शुरू किए कि जी ईरान ने कतर के जहाज़ पर ड्रोन से अटैक कर दिया, तो वहाँ पर जो ईरान के अंदर एक राय पाई जाती है वो ये थी कि ना तो हमें हमारे एसेट्स रिलीज़ हुए, ना ही हमें कोई और इस MOU से फ़ायदा हुआ, और अमेरिका ने हमें 60 डेज़ दिए थे कि बाखर साहब माफ़ कीजिएगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये अगर कोई राय है तो ये तो बहुत ही माफ़ कीजिएगा बहुत ही अजीब राय है, क्योंकि जो 14 रुकनी MOU था वो तो अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया कहती थी कि ये ईरान के लिए बहुत उम्दा डॉक्यूमेंट है। अमेरिका में इस पर एक तूफ़ान सा खड़ा हो गया था, और जहाँ तक सब्सटेंशियल बातें हैं, आप देखें ना, ऑयल जो सैंक्शंस थी वो लिफ्ट हो गई थी। उन्होंने कोई 50 मिलियन बैरल जो है ऑयल जो है वो बेच दिया था, और उनको बेपनाह नेवल ब्लॉकेट ख़त्म हो गया था, ट्रेड शुरू हो गई थी। तो ये कहना तो बिल्कुल ही, अगर ईरान में कहते हैं लोग कि हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो ये तो मुनासिब बात है। कमरान साहब, अगर हम उसके, अब मैं पूरे 14 पॉइंट्स को तो नहीं लेके जाता, लेकिन अगर आप उसकी क्लॉज 5 को ही उठा लें तो उसमें 60 डेज दिए गए थे ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लियर करने के लिए, कि जी इसमें 60 डेज़ में उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है इसको। और इम्प्लीमेंटेशन की उसकी अपनी वर्डिंग यह है कि ईरान और ओमान ने मिल के गवर्नेंस तय करनी है, जिस पर बातचीत हो रही थी। इस दौरान से एक साउथ कॉरिडोर उन्होंने बनाना शुरू किया। तो ये चीज़ वहाँ पर मैं आपको अपनी कोई जजमेंटल उस पर नहीं दे रहा कि वो ठीक थे या गलत थे, लेकिन एक ओपिनियन बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये था कि अब ये यूनिलैटरली अमेरिका ने वहाँ पे साउथ कॉरिडोर उसमें बनाना शुरू कर दिया है, एज अगेंस्ट जो मेमोरेंडम में हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। मेमोरेंडम की जो वर्डिंग थी वो काफ़ी एम्बिगुअस थी, और जब ये हॉस्टिलिटीज़ चल रही होती हैं कहीं भी, और मैं ये किसी को मतलब वो नहीं कह रहा कि इस मेमोरेंडम में कोई फ्लॉ था, तो वहाँ पर मसूद खान साहब भी इसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसमें एम्बिग्विटी बिल्ट इन होती है ताकि दोनों साइड्स अपनी सक्सेस क्लेम कर सकें। तो वहाँ से ये चीज़
फ्लो की है और जी ईरान ये समझता था कि वहाँ पर यूनिलैटरल एक्शंस की वजह से उनको मजबूर किया गया कि वो दोबारा से ये वाला इसके ऊपर जो अटैक शुरू करे। और आज भी मेरा ख्याल में जो पोजीशन पाकिस्तान को ईरान की लीडरशिप की तरफ से अभी मोमिनी साहब आए हुए थे तो यही कन्वे की गई थी कि हम अभी तक मेमोरेंडम में ही हैं, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई है और हम दोबारा से अपना डेटरेंस इस्टेब्लिश करके जब भी दोनों साइड्स एग्री करेंगी हम बातचीत के लिए। तो एम्बेसडर साहब फरमाइएगा कि अब ये एक ऐसा लम्हा है और ऑब्वियसली जैसे पहले भी बात हुई कि नवंबर के मिड टर्म्स जो हैं वो एक बहुत ही क्रिटिकल इस हवाले से वो माइलस्टोन है कि जिससे पहले ये तमाम चीज़ों को परहैप्स प्रेसिडेंट ट्रंप को हर सूरत में जो है इसको हल करना है। तो अब आपको गोइंग फॉरवर्ड कब तक ये स्टेलमेंट जो है वो बरकरार नज़र आता है? और अब ये तो हम नहीं कह सकते कि एक और MOU हो जाए या क्योंकि MOU भी हो चुका है, सीज़ फायर भी हो चुका है, ये तमाम चीज़ें 3 बार सीज़ फायर हो चुका है, उसके बाद फिर हम उसी जगह पे खड़े हैं। तो हम कितने बार मज़ीद सीज़ फायर को अफोर्ड करेंगे या अब कहीं ना कहीं अब ये गाड़ी थमेगी, ऊँट किसी करवट बैठेगा? एक ये है कि जो मुफाहमती यादाश्त है उसमें किसी किस्म का कोई इबहम नहीं था। हमने भी जो है सफारतकारी की हुई है, मुज़ाकरात किए हुए हैं, तो उसमें किसी किस्म का इबहम नहीं था। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उस पूरी की पूरी यादाश्त का झुकाव ईरान की तरफ था, जिस वजह से सदर ट्रंप को निशाना तनकीद बनाया गया। उनको कहा गया कि आपने सरेंडर किया है, कैपिचुलेट किया है और आप जो है हर्बर्ट हूवर जो इनका कमज़ोर तरीन सदर था उससे उनका मुवाजना किया गया। हालांकि वो अपनी जो लेगेसी है वो अब्राहम लिंकन से मिलवाना चाहते हैं या और जो ताकतवर तरीन सदूर हैं उनसे मिलवाना चाहते हैं, तो इसमें उन्हें नाकामी हो रही थी। दूसरा ये कि ईरान में जब फ्यूनरल हुई तो उसके बाद इंतकाम की जो आवाज़ें आईं और उसकी वजह से जो है सूरत हाल बिगड़ी। और तीसरा ये था कि कोई इबहम ना होने के बावजूद अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूनाइटेड नेशन से मिलकर एक मुतवाज़ी इस 60 दिनों के अंदर जो मुतवाज़ी राहदारी बनाई थी जो उस इलाक़े में जो कि ओमान के साथ मुत्तसिल था, तो उससे गलतफहमी पैदा हुई और ईरान को जवाज़ मिला कि वो वेसल्स को स्ट्राइक करे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि सदर ट्रंप के मुफाद में भी यही है और ईरान के मुफाद में यही है और बिलखसूस खलीजी रियासतों के मुफाद में ये है कि जंग किसी तरीके से बंद हो और आसार नज़र आ रहे हैं। हाउएवर अमेरिका ने एक तरफ ये देख रहा है कि किस तरीके से मुसालहत का सिलसिला चल रहा है और किस तरीके से सालसी का सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ उसने एक मरतबा फिर अपने आर्माडा को बीफ अप किया है और एम्फीबियन फोर्सेस भी यहाँ डिप्लॉयड हैं, एयरबोर्न फोर्सेस भी यहाँ हैं। और उसके बाद उनका जो ये धमकी आज मेरा पिछले 24 घंटों में उन्होंने धमकी दी है पिकैक्स माउंटेन में, जिसमें वो कहते हैं कि वहाँ उसके तय में वो यानी इनरिच्ड यूरेनियम के ज़खायर मदफून हैं किसी न किसी हालत में, किसी न किसी मकदार में। और ईरान भी ये इस पे बज़द है कि जनाब हम तो मुकाबला करेंगे। उनके जो बयानात देख लें तो इस वक्त जो है हमें दोनों चीज़ों की तरफ देखना है। दुआ करेंगे कि ये मुसालहती और ये जो सालसी का जो अमल है ये कामयाब हो और दूसरी तरफ ये है कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये जंग टल जाए, क्योंकि ये न सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए ख़तरनाक तरीन जंग रही है, मैं समझता हूँ, दूसरी जंग अज़ीम के बाद।